اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ مجھ سے بات ہوئی ابو حمزہ دیوبندی سے، جس کا نام ہے رئیس دیوبندی، ٹھیک ہے، نام اپنا چھپاتا ہے، اپنے بیٹے کے نام اپنے بیٹے کی طرف منسوخ کر کے نام اپنا چھپاتا ہے، اس کا نام ہے رئیس دیوبندی۔ تو وہ ایک موضوع لے کر آیا تھا بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ آگے سے دیکھیں گے، ایک موضوع آگے لے کر آیا تھا بات کرنے کے لیے، اور اس نے اپنا موقف یہ بتایا تھا کہ میرا یہ موقف یہ ہے کہ کسی کی عبارت لکھی جائے اور کوئی تردید نہ کی جائے تو اس کا اپنا موقف ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا عقیدہ ہو جاتا ہے، اس کا اپنا موقف ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کسی دوسرے کی کتاب سے حوالہ دوں تو بات الگ ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے ہی حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ اس سے تمام ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میرے پاس بخاری شریف بات سنیے گا، یہ اس کا موقف اور کس کے خلاف جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ماذ اللہ رب العالمین اس کا موقف جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا ذرا سا ان دیوبندیوں کی سیدھا دلی یہ کہاں تک چلے گئے، یہ اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی کے بغض میں یہ کس حد تک چلے گئے، آپ دیکھیں گے آگے یہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ تو حدیث شریف آپ دیکھ لیجئے، 6982 نمبر حدیث ہے، اور حدیث بہت طویل ہے، لمبی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث یہ کا تھوڑا سنا دے رہا ہوں، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس وحی آنا بند ہو گئی تھی کچھ وقت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث بہت لمبی ہے، تو میں ایک حدیث نمبر بتا دیا، آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، یہ حدیث شریف میں موجود ہے، چونکہ حدیث میں ہے وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں، اور یہ حدیث کئی ساری کتابوں میں ہے، جیسے کہ طبقات الکبریٰ، المتوفیٰ 200 امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، المتوفیٰ 230 ہجری، امام احمد بن حنبل کی کتاب المسند امام احمد بن حنبل، اور بھی کئی ساری کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو کہنا یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث شریف لکھی ہے اس کے بعد میں اس کے آگے کوئی تردید نہیں کی، کچھ تبصرہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں لکھا، نہ اس کے اوپر کچھ نیچے نہیں، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اس کے بقول ابو حمزہ دیوبندی کے بقول ان کا وہی عقیدہ ہے کہ خودکشی کرنا ماذ اللہ رب العالمین جائز ہے نا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن حدیث کچھ اور کہتا ہے، دیوبندی کچھ اور کہتا ہے، جھوٹا ہے دیوبندی، الزام لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد اپنا کچھ بچا نہیں ہو تو یہ اصولوں کی آڑ میں رہ کر کے یہ باتیں نکالتا ہے، کیونکہ ان کے پاس قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، اور سیدھے سیدھے بات کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، حوالہ ٹو حوالہ، تو یہ اصول سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ فلاں کے اصول تو یہ ہو گیا، فلاں کے اصول جیسے کہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ان کے فتوے سے ماذ اللہ رب العالمین کافر ہو گئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کو کوئی عبارت نہیں ملی ان کو، نہ ان کے اکابر کو ملی جس پر یہ حکم کفر عائد کر سکے، کیا خبر ہے، نہ ان کے پاس کوئی عبارت ملی، کیونکہ اب کچھ نہیں بچا تو اس لیے اصول کے ذریعے سے یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ابھی تک اس نے اپلوڈ نہیں کیا، حالانکہ یہ 5-6 دن پہلے کی بات ہے، تو اس کی بہت ذلت ہوئی۔ اور جیسے کہ میں نے بات کی تھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی، تو ان دیوبندیوں کی 20 کتاب میں موجود ہے، کیونکہ ابھی حوالہ میں کئی دنوں سے تلاش رہا تھا، مجھے ملا نہیں، اور اس کو بھی معلوم ہے کہ حوالہ ہے، اور ایک نئے دیوبندیوں کی 20 کتاب میں انشاءاللہ آگے ویڈیو میں میں آپ کو حوالہ نکال کر کے ایک چھوٹا ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا، ٹھیک ہے، وہی حوالہ ضرور میں ڈال دوں گا، 1 منٹ 2 منٹ کا جو بھی ہوگا حوالہ میں ضرور ڈال دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دعا میں یاد رکھیے اور ان جھوٹوں سے بالکل دور رہیں، بالکل دور رہیں، ٹھیک ہے۔ جو بندیوں سب سے بڑے جھوٹے کذاب ہے، دجال ہے، مکار ہے، عیار ہے، ان سے دور رہیں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام ہے آپ کا؟ ہاں جی کیا نام ابو ہے؟ حمزہ بھائی، ابو حمزہ قادری صاحب۔ اچھا، آپ بات کریں گے؟ ہاں ابو حمزہ قادری صاحب بات کریں گے۔ ہاں قادری بھائی، ہاں ہیلو، ہاں کریے بات۔ ہاں خیریت سے ہیں حضرت؟ ہاں الحمدللہ خیریت سے۔ ہاں تو دیکھو ذرا بات کرنی ہے، تھوڑا سا اچھے سے بات کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں بات کروں، آپ سنیے گا، آپ بات کریں گے، آپ میں سنوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاں تو حضرت یہ جو ہے آپ کے عالم کی کتاب ہے، تفسیر ہے، نور العرفان، مفتی احمد خان نعیمی صاحب کی،
उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफें करते हैं। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो हिंदुस्तान के मुशरिकीन है, हिंदू जो है, उन्हें कृष्ण का नाम देकर उनकी तारीफें करते हैं। हाँ, मुशरिकीन अरब भी अपने को इब्राहिमी कहते हैं। यानी क्या आप इसको मानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही जो है कृष्ण है? हम तो नहीं मानते, वो तो मुशरिकीन मक्का, ये हिंदुस्तान के जो मुशरिक हैं वो ये बात कहते हैं ना, हम तो कहते ही नहीं। इस टॉपिक पे आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, मेरा मौक़िफ़ नहीं, मैं आपको मौक़िफ़ पूछ रहा था। तो ये जो हमारा तो है नहीं, हम तो कहते ही नहीं। अच्छा, तो जिन्होंने लिखा है क्या गलत लिखा है? नहीं, हाँ, तो इसमें क्या गलत है? वो थोड़ी मान रहे हैं कि भाई हम कृष्ण मानते हैं। वो तो इंडिया के जो मुशरिक है वो तो 33 करोड़ देवती देवताओं को मानते हैं, न जाने किस किस को मानते हैं। तो उनका मानना हमारा मानना थोड़ी है। वो तो मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला ने वही बताया है उन्होंने। वो थोड़ी बता रहे कि हमारे यहाँ मौक़िफ़ पे हम ये मानते हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, मेरे पास एक किताब है जिसका नाम इस्लाम और ईसाईयत। हाँ, तो इस पर कोई मौजूद चुनिए ना। हाँ, तो सुनिए, आप 2 मिनट आपने बात की है, तो 2 मिनट आप बात की है, तो इस पर कोई टॉपिक चुनिए कि आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो मुझे भी तो पता चले। देखिए, मैंने आपकी किताब से हवाला नकल किया कि आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, तो आपने कहा कि ऐसा हम कुछ नहीं मानते हैं। मैंने कहा मुझे आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है उसके बारे में क्या हुक्म है? हाँ, तो लाइए, इबारत लाइए, उस पर हुक्म आप सुनाएंगे, मैं थोड़ी सुनाऊंगा, क्योंकि एतराज़ आपका है, मेरा थोड़ी है। जो एतराज़ करेगा वो हुक्म सुनाएगा ना। नहीं, तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरा एतराज़ क्या है इस पर। लाइए, इबारत पेश करिए, हवाला दीजिए प्रश्न पर। दीजिए। जी, हाँ। तो देखिए, पहले बात पूरी सुन लीजिए, है ना? नहीं, दे इबारत दे, ताकि मैं इधर देखता भी रहूँ, आप बात भी करते रहें, और उसके बाद एतराज़ के बाद हुक्म भी सुनाइए। अच्छा, ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप सेंड करिए। हाँ, बस भेज रहा हूँ। ठीक है। देखो, आपको गया। एक मिनट। पढ़े, इबारत पढ़े, क्या एतराज कर रहे हो, क्या हुक्म इस पर? एक मिनट, और भेज रहा हूँ। हाँ, पूरा भेज दीजिए, बात करता हूँ। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देखा आपने? हाँ, पढ़े इबारत पढ़े। एक है नूरुल इरफान। कौन सी इबारत पढ़ रहे हो बताइए? मैं बता रहा हूँ, सफ़ा नंबर 492, इसको देखिए आप, है ना? तो पढ़िए इबारत पर। इसमें लिखा हुआ है कि हत्ता की बात मुशरिकीन भी आपको कृष्ण कहकर आपका एहतराम करते हैं। मुझसे खुद एक मजहबी हिंदू ने कहा कि जिन्हें तुम इब्राहिम कहते हो उन्हें हम कृष्ण जी कहते हैं, और हजरत इस्माइल को अर्जुन। यानी एक हिंदू ने उनसे खुद कहा, मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब से, जिन्हें आप इब्राहिम कहते हो उन्हें हम कृष्ण कहते हैं, और जिन्हें इस्माइल कहते हो उन्हें हम अर्जुन कहते हैं। तो ये मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने। हाँ, और दूसरा जो है सफ़ा नंबर नूरुल इरफान कहिए, ये आपके पास है स्केल, सफ़ा नंबर 814। तो इसमें लिखा हुआ है कि सारे अहले किताब अपने को इब्राहिमी कहते हैं, और हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफें करते हैं। मुशरिकीन अरब भी अपने को इब्राहिमी कहते हैं। समझ आया? ये मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने, मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने ये चीज अपनी किताब में लिखा है, नूरुल इरफान तफसीर में लिखा। तो उसके बाद एक किताब है इस्लाम और ईसाईयत, एक तकाबुली मुतालिया, जावेद अहमद अंबर इस्माइल साहब, ये आपके मोहतर आलिम है। पहले 4-5 किताबें सुने, 4-5 किताबें नाम
मिलाइए, पहले एक एक हवाले पर बात कर रहे हैं ना, 4-5 किताबों को मिला के मौक़िफ़ नहीं बनता है। पहले 1-2 हवाले जो आपने बताए हैं, मैं दो बता रहा हूँ, खाली मैं आपको एक बता रहा हूँ। सुने मेरी बात सुने, 2 किताब मौक़िफ़ अलग अलग हो जाएगा, पहले उन दोनों को क्लियर कर लीजिए। एक ही मौक़िफ़ है, सुनिए, एक ही मौक़िफ़ है। मैं अपनी मौक़िफ़ के टाइप में बात ला रहा हूँ। तो आप अपने मौक़िफ़ के टाइप में बात ला रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मैंने आपको वर्क सुना दी है, आपने वर्क सुन लिया। अब आगे जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने नकल किया है। इन दोनों को पहले क्लियर करिए। या तो हम खुद कह रहे हैं कि जो तफसीरें नहीं, ये जो हवाला तफसीर आपने भेजा हुआ है, ये तो हम खुद कहते हैं कि ये तो इंडिया के मुशरिक है, वो इस बात को खुद मानते हैं, तो हम थोड़ी मानते हैं। हमारा मौक़िफ़ वो नहीं है, वो तो इस बात को लिख रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, 2 हवाले बता रहा हूँ। अच्छा, आप हमारा मौक़िफ़ बता रहे हैं, बताइए। जी बताइए। इस्लाम और ईसाईयत एक तकाबुली मुताल्ला है। जावेद अहमद अंबर मिसबाही ये लिख रहे हैं सफ़ा नंबर 36 से कि इस इत्तेबात से जहाँ ये मुस्तफाद होता है कि मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने वाले आपको नबी बरहक मानते थे, वहीं इससे भी मुस्तफाद होता है कि कातिबीन अनाजील जिन्हें ईसाई अकीदे सलीफ के इमामों से इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भी यही अकीदा है, क्योंकि उन्होंने आमतुन नास के कौल को बिला तरदीद इनकार नकल किया। यानी इनका कहना ये है कि किसी की बात से नकल करना बिना तरदीद के तो उसका भी अकीदा होता है। तो आपके मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने ये नकल किया हिंदू की बात को और उसकी तरदीद नहीं की, इससे साबित हुआ कि आपके मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब का भी यही अकीदा है जो अकीदा हिंदुओं का है। अच्छा ठीक है, मैं बोलूँ? हाँ, आपने कहा कि तरदीद नहीं की, आपने कहा कि तरदीद नहीं की। यहाँ पर बिल्कुल तरदीद मौजूद है, जहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा होगा कि ये बात इब्राहिम, ये मजहबी हिंदू ने ये बात कही है उनसे। तो ये बात तो खुद कह रहे, बता रहे, वाजे खुल करके बता रहे कि एक इंडिया के जो मुशरिक थे उन्होंने ये बात उनको बताई है। तो मतलब किसी को कोई बात बताना और लिख देना उस तफसीर में, वो उनका अकीदा होता है। मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने उनको बताया कि हम तो कहते थे कि कृष्ण जी कहते हैं और हजरत इस्माइल को अर्जुन, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो तो ये बात कह रहे हैं, वो तो ये बात तफसीर में लिख रहे हैं। तो ये 2 हवाले को मिला करके कोई मौक़िफ़ नहीं बनता है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इन दोनों को मिला करके, और आपने कहा कि हमारा मौक़िफ़, आपने कहा ना अभी ये हम अपना मौक़िफ़ बना रहे, तो पहले ये बात क्लियर कर लीजिए कि आपने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है, यानी कि आपने हमारी किताब से मौक़िफ़ अपना बनाया, ठीक है ना। हमारे किताब से अपना मौक़िफ़ बनाया, ये बात आपने भी कही है कि हमारा मौक़िफ़ है। चूँकि आपकी किताबें आपके लिए हुज्जत नहीं रहेगी, आपने खुद अपने अकाबिरीन को छोड़ दिया। यहाँ पर आपने कहा कि हमारा मौक़िफ़ बता रहा हूँ, आपने चूँकि अपने अकाबिर का मसलक का खून करते हुए हमारी किताब से हमारा मौक़िफ़ बनाया। हालांकि दावा आपका कुछ होना चाहिए था, अपने अकाबिर को साथ में ले करके दावा रखना चाहिए, क्योंकि उसूल की किताब अभी मैं पेश कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी बात हो गई? आपने नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। चूँकि आपने कहा कि तरदीद नहीं, ठीक है ना, तरदीद नहीं किया। वहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह तौर से लिखा हुआ, साफ तौर से लिखा है कि भाई ये बात मुशरिकीन कहते हैं, इंडिया के मुशरिकीन कहते हैं। वो तो इस बात को सिर्फ एतराज़न लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो कहते हैं। भाई हमारा मौक़िफ़ कैसे हो गया? अब मौक़िफ़ जो बनता है वो कैसे बनता है बताइए? मसलक के जो उलमा होते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, मुकम्मल हो जाने दीजिए। मसलक के जो उलमा होते हैं उन पर हम चलेंगे तो मौक़िफ़ बनेगा, या फिर किसी और की बात मानते हुए मौक़िफ़ चलेगा? अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ऊपर है, या फिर इन जो बताए अभी ये किताब इस्लाम और ईसाईयत उन्हें जो लिखी है वो ऊपर है? इसमें से कौन ऊपर है वो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं वो बात, हाँ नहीं, अब अल्लाह के कलाम पर आप जाए नहीं पहले। बिल्कुल वहाँ तो हमारा कोई एतराज़ ही नहीं है, पहले इसको क्लियर करते चलिए। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो, आपने कहा कि आपके मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने उसका रद्द किया है, ये कहीं करके कि हिंदू का कौल है, बराबर। अब मैं बता रहा हूँ कि रद्द किस तरह। एक तो आपके आलिम दिन कह रहे हैं कि किसी की बात को बिना तरदीद नकल कर देना उसका अकीदा कहलाता है, तो आपने तो उनको छोड़ दिया, आपने अपने आलिम को ये कह के छोड़ दिया कि पहले ये है कि पहले वो है। हालांकि आपके मोतबर आलिम है, अली किताब के आपके मोतबर उलमा की तस्दीकात मौजूद है। और दूसरी बात सुन लीजिए, रद्द किसको कहते हैं। देखो, कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 30 है और तर्जुमा कंजुल इरफान है। आपको सुनाऊं आयत पढ़िए कि तर्जुमा सुनाऊं? सुनाइए, जो आप पढ़े सुनाइए, तर्जुमा पढ़े या आयत पढ़े। अच्छा हाँ, तर्जुमा सुन लीजिए।
तो आयत नंबर 30 है सूरह तौबा की, अगर आपका कुरान आप खोल लीजिए नहीं पढ़े और तर्जुमा है कंजुल इरफान का। और यहूदी ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है। अब देखो अल्लाह पाक ने यहाँ पे बात नकल की ईसाइयों की और यहूदियों की, कि अल्लाह पाक आगे रद्द कर रहा है, अल्लाह ही कह रहा है कि ये उनके अपने मुंह से कही हुई बात है, ये पहले के काफिरों जैसी बात करते हैं, अल्लाह इन्हें मारे कहाँ औंधे जाते हैं। इसको कैसे रद्द करना, यहूदियों के और ईसाइयों के कौल को नकल करके अल्लाह पाक रद्द कर रहा है कि उनके मुंह की बात है, ये हकीकत नहीं है। और आपके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब बात पे नकल करके तो रद्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात पे नकल कर दिया। और फिर आपके आलिम दीन ही कह रहे हैं कि किसी बात को नकल कर देना बिला तरदीद ये उसका अकीदा कहलाता है। तो ये आपका अकीदा हो गया ना भाई। चलो ठीक है, मैं बात करूँ? हाँ अब आप बात करें। हाँ ठीक है, चूँकि आपने ये बात कही है ऑन रिकॉर्ड, आपके पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। आपने कहा था कि ये हमारा मौक़िफ़ है, मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर रहा हूँ। चूँकि आपने हमारी किताब से अपना मौक़िफ़ बना लिया, ठीक है ना, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका मौक़िफ़ आपके ही खिलाफ चला गया। दोनों बातों का हवाला मैं पेश कर दिया हूँ, मैं आपको पर्सनल पर आप चेक कर लो व्हाट्सएप पर। क्योंकि यहाँ पर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने वजाहत करके साफ तौर पर बता दिया कि इंडिया के जो मुशरिक हैं वो ये बात कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है, क्योंकि मैंने आपके पर्सनल पर एक हवाला भेज दिया हुआ है जिसका नाम है औलिया अल्लाह, ठीक है ना, जिनको लिखने वाले का नाम है अशरफ अली थानवी साहब। उन्होंने ये बात कही, क्योंकि आप यहाँ पे तरदीद नहीं की है। देख लीजिए, आपने मौक़िफ़ बनाया है, आप चेक कर ले खुद कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या तुम्हें मालूम है कि हिंदी में अल्लाह का नाम क्या होता है। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं मालूम कहा, तो खुद ही ये फरमाया कि हिंदी में अल्लाह का नाम क्या होता है बताइए। अल्लाह का नाम क्या होता है हिंदी में? हाँ, हिंदी में अल्लाह का नाम क्या होता है? अल्लाह का कई नाम बताएगा हिंदी के अंदर, जैसे नाम क्या नाम बताया गया अल्लाह पाक। क्या नाम बताएगा? हर हाँ, एक हर नाम बताया अल्लाह ना। का हर है, एक नाम अल्लाह का ईश्वर है। अशरफ अली थानवी साहब ने दूसरा नाम बताया। मैं नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने अल्लाह का नाम क्या बताया, रुकिए मैं निकाल लेता हूँ, फिर से देखिए मेरे पास डिलीट हो। निकाले एक वसूल पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले वसूल भेज दे रहा हूँ। नहीं वो नाम बताओ, अल्लाह का नाम क्या बताया उन्होंने? सुन ले, आपने कहा ना कि सुनेंगे, अब सुनिए, ठीक है। हाँ देखिए, पहले तो एक वसूल मैंने आपको पेश कर दिया हुआ है, यहाँ पर सफ़ा नंबर 161 पर है। किताब का नाम है किताब गैर मुक़ल्लिदीन के साथ। यहाँ पर लिखा है, चूँकि किसी भी मजहब का माकिद उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटो कलाम हुज्जत नहीं होता है। आपने माकिद बना लिया किसको? हमारे अकाबिर की किताब को मान लिया, तो आपने देवबंदियत तो यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे आपने देवबंदियत को छोड़ दिया। अब मैं आप मुकम्मल कीजिए, बात मुकम्मल कीजिए। मैं भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, भेज रहा हूँ मैं आपको, हवाला भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। चले आप बात करें। हो गया आपका? हाँ आप बात करो, हवाला मैं सेंड कर रहा हूँ, आप बात करें। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ। अभी आपने एक बात ये कही कि पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा, ना। हाँ मैं वही पॉइंट बात कर रहा हूँ, सुनिए आपने बताया, कहा कि मैंने जो है जो दलील दिया, जो मैंने माफ़ज़ बनाया, यानी मौक़िफ़ बनाया आपके अकाबिर का। हालांकि मैंने उसके साथ में कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत नंबर 30 करके बताया कि कुरान पाक में अल्लाह पाक यहूदियों के ईसाइयों के अकीदे को अल्लाह नकल करके अल्लाह रद्द कर रहा है कि उनके मुंह की बात है, फोकट यानी फालतू की बात है, अल्लाह पाक रद्द कर रहा है। और आपके मुफ्ती अहमद खान नईमी सब रद्द नहीं कर रहे हैं। तो और आपकी अकाबिर कह रहे हैं कि आपके आलिम कह रहे हैं कि किसी की बात का बिला तरदीद नकल कर देना ये उसका अकीदा कहलाता है। तो आपके मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने उसका रद्द नहीं किया, सिर्फ नकल कर दिया। नकल करने के बाद रद्द नहीं किया कि आपके मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब को अकीदा हो गया। और आपने कहा कि मैंने जो हवाला दिया है सिर्फ आपके आलिम का दिया है, ऐसा नहीं है। मैंने हवाला कुरान पाक से दिया है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने यहूदियों के और ईसाइयों के अकीदे को अल्लाह बयान करके अल्लाह रद्द कर रहा है इस चीज़ का, मगर आपके मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने रद्द नहीं किया। तो ये आपका अपना अकीदा हो गया कि हाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिसमें जो है अर्जुन कहते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिंदू लोग जो है कृष्ण कहते हैं, यानी आपका अकीदा हो गया। ये क्यों रद्द नहीं किया आपके आलिम? ठीक है, मैं बात करूँ। हाँ यहाँ तो आपने खुद कुरान पाक के खिलाफ बात की, क्योंकि आपने कहा कि किसी को वाज़े करना, रद्द करना, नहीं रद्द करना उसका अकीदा होता तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रद्द किया है।
اگر رد کیا ہے، اور یہاں پر انہوں نے بھی فرمایا ہے جو کتاب آپ نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے جو کتاب پیش کی آپ نے کہا کہ رد نہیں کرنا وہ عقیدہ ہوتا ہے نا، یہی بات کہی نا آپ نے؟ ہاں آپ کے عالم، میں نے آپ کے عالم سے کئی بات نہیں تو موقف آپ نے بنایا ہے نا، یہ موقف آپ نے نہیں، بنایا ہے آپ کے نا، عالم سے بات تو ثابت کیا نا کہ آپ کے عالم نے بات لکھا ہوا نا غلط. نہیں وہ بات تو بالکل صحیح ہے، اس پر تو کوئی ہمارا اعتراض ہی نہیں. آپ میں نے آپ سے جو باتیں پوچھی تھی. بات صحیح ہے. ہاں وہ پوچھیے. ٹھیک ہے بولے آپ ہی بات مکمل کر لیں، بیچ میں نہ روکے. ہاں تو میں نے آپ کو ہی کہا کہ پہلی بات تو میں نے مفتی احمد خان نعیمی صاحب کی عبارت نقل کی کہ انہوں نے ہندو لوگوں کو قول نقل کیا کہ ہندو ابراہیم علیہ السلام کو کرشن کہتے ہیں اور اسماعیل کو ارجن کہتے ہیں. پھر آپ کے عالم سے نقل کیا کہ کسی کی بات کو بلا تردید نقل کر دینا یہ اس کا عقیدہ کہلاتا ہے، یہ آپ کے عالم کی بات ہے. اور پھر میں نے اس کی وضاحت میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 کہ اللہ پاک جو ہے یہودیوں کے عیسائیوں کے عقیدوں کو نقل کر کے اللہ سے رد کر رہا ہے. یہ ان کے منہ کی بات ہے، یہ حقیقت بات نہیں ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ رد کر دیا. ہاں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مفتی صاحب نے نقل کر کے رد کیا، مطلب رد کہاں کیا آپ کے مفتی صاحب نے؟ سن لیجیے ٹھیک ہے، اب سن لیں یہ سنیں. ایک عیسائی کا جواب دیتے ہوئے ایک عیسائی نے سوال کیا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ سے کہ آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تعلق سے کہ آپ کے اللہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں بچایا، وہ حوالے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کتاب میں، آپ کے ایک نہیں بیسوں کتاب میں ہے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنے پاس بیٹھایا تھا، وہاں پہ رکھا تھا، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ حوالہ میں دے رہا ہوں. تو کیا شاہ عبدالعزیز اس کے بعد انہوں نے تردید نہیں کی اس بات کے، تو کیا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ اس کے آگے کوئی تردید نہیں ہے، ایک نہیں بیسوں کتاب سے حوالہ میں دے رہا ہوں. آواز بہت آ رہی ہے ادھر سے. نہیں آپ نے آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، کدھر؟ نہیں میں کہیں گیا نہیں، چونکہ آپ نے یہ بات کہی ہے، چونکہ آپ سن لیجئے میری بات سن لیجئے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اصول سب کے لیے بنتا ہے، ایک کے لیے تھوڑی بنتا ہے کہ اس کی تردید نہ کرنا اس کا اپنا موقف ہوتا ہے. تو یہی بات اس کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہی نہیں ہے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں چونکہ آپ نے اپنا موقف بنا لیا نا، تو اس موقف پر کیا حکم لگے گا؟ بولنے دیں میری بات مکمل ہونے دیں. چونکہ آپ نے بولا کہ یہ ہمارا موقف ہے، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر جو حکم لگے گا وہ حکم ان کے پر بھی لگ جائے گا. آپ لگا دیں، چونکہ آپ نے موقف بنا کر کے، اور میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ حکم لگائیے، تو چونکہ آپ کا دعویٰ بھی تھا اور آپ کا موقف بھی تھا، تو موقف کے طور پر آپ کو حکم یہاں پہ سنا دیجیے، بات ختم ہو جائے گی. اچھا ہو گئی بات آپ کی؟ ہاں آپ حکم سنا دیں، میں مان لوں گا. میں کہہ رہا ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ آگے تردید نے ایک نہیں بیسوں کتاب سے دکھاؤں گا، میرے پاس حوالے ہیں، میں بیسوں کتاب سے دکھاؤں گا. آپ صرف حکم سنا دیں، میں حوالہ بھیج رہا ہوں. کیونکہ انہوں نے تردید نہیں کی ہے. جی حکم سنا دیں، کیونکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تردید کی ہی نہیں. بس آپ تو حکم سنا دیں، میں مان لوں گا، چونکہ آپ نے یہ بات کہی ہے. جی بولے. پہلی بات تو میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اور میں نے کوئی حکم نہیں سنایا. میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ سوال کی باتیں نہیں رہے گی جناب. ابو امجد آپ کو سوال کی بات ہے، اب آپ جیسے بول رہے ہیں، آپ ایک لوگ بات کریں بھائی. دیکھو دوسرے ابو امجد آپ دوسرے آدمی کو خاموش کرائے، دوسرے آدمی کو خاموش کرائے نا. میں صرف حکم پوچھ رہا ہوں، لمبی بات نہیں کروں، مختصر میں کروں گا. حکم سنا دے، مختصر کرے، اس کو حکم سنا دے، بات ختم کرے. بھائی دیکھیے، ہاں دیکھیے صادق بھائی سے میں نے پہلے سوال کیا، سوال آپ نے کیا ہی نہیں. آپ نے سوال کیا ہی نہیں، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، چونکہ آپ نے موقع بنایا ہے. جھوٹ نہ بولے جناب، جھوٹ نہ بولے، پھنس گئے آپ. جھوٹ آپ نے بولا میں اپنا موقع بتا رہا ہوں، چونکہ آپ نے اپنا موقع بنایا تو اس میں آپ حکم سنائیں. میں نے کہا کہ میں آپ کا موقف بتا رہا ہوں، کیا کہ موقف کیا ہے؟ آپ نے کہا نہ ابھی آپ نے اپنا موقف سنایا تھا، اور میں نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ نے کہا تھا سناؤں گا. ارے بھائی ان کو خاموش کرائیے نا، وہ ابو امجد آپ بات کریں، میں کہہ رہا ہوں حکم سنا دیجیے، بات ختم ہو جائے گی. ہاں آپ اس سے بولنے دو نا.
पहली बात तो हाँ, मैंने बात करें। तफसीर नूरुल इरफान का मैंने हवाला दिया कि आपके मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने ऐसा लिखा हुआ है, और फिर आपके आलिम ने लिखा हुआ है किसी भी बात को बिना तरदीद नकल कर देना उसका अकीदा कहलाता है। अब उसके बाद मैंने कुरान पाक से तरदीद नकल की कि अल्लाह तो कुरान पाक से तरदीद नकल की तो कुरान पाक की हुज्जत तो आपके लिए भी है। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ कि कुरान पाक की तो हुज्जत तो आपके लिए भी है ना। हाँ ठीक है, आप बात करें। आप किसी बोल रहे हैं? बोले। हाँ, मैंने आपके आलिम से आपको मौका बता दिया कि बिना तरदीद किसी की बात को नकल कर देना इसका अकीदा कहलाता है। तो आपने अपने आलिम को छोड़ दिया, उसका कोई जवाब मैंने नहीं छोड़ा। फिर तो ये आप इनको क्या मानते हैं? फिर ये बात नहीं, चूंकि आप खुद ये बात को इकरार कर रहे हैं कि मैंने उसके दलील मजबूत करने के लिए मैंने कुरान पाक की आयत पेश की थी, यानी कि आप खुद कुरान पाक को छोड़ रहे हैं। आपने खुद कह रहे हैं बात को, आप सुनिए 4-5 मरतबा आपने तारीख में कुरान पाक पेश करे तो कुरान पाक तो हुज्जत तो आपके लिए भी है। या तो कह दीजिए हमारे लिए हुज्जत, आपके लिए हुज्जत नहीं, कह दीजिए। आपके लिए हुज्जत नहीं है, हमारे तो है नहीं। आप पेश कर रहे हैं तो हमारे लिए पेश कर, यानी कि आपके लिए हुज्जत नहीं है कुरान पाक। साहब ने तरदीद कहाँ किया बताइए आप। सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तरदीद की है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म सुनाया है, जो रद्द किया, क्या वो रद्द आपके लिए नहीं है हुज्जत? बिल्कुल बताइए मुझे, हुज्जत है ना? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप सुनाए पर शाह अब्दुल अजीज मोहद्दी देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुक्म है, हुज्जत आपने कहा है यहाँ पर, आपने बात कही है कि हुज्जत है। इस पर तो बात कर लो। आपके लिए एक होता है, अलग अलग नहीं होता है। सुन लीजिए, उस जुमरे में जो भी आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस हुक्म में जो भी आएगा उसके ऊपर ही हुक्म सुनाएगा, उसमें जो भी आएगा उसके ऊपर हुक्म आएगा। उसके लिए कोई अलग नहीं कि आला हज़रत के लिए अलग फतवा है तो उनके लिए अलग फतवा है। सबकी इबारत अगर एक आती है तो हुक्म सबके ऊपर एक आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूंकि आपने खुद कुरान पाक की तायद में आयत पेश की है तो वो ये आपके लिए भी हुज्जत है, हमारे लिए हुज्जत है, चूंकि आपका भी मौक़िफ़ वही है, मेरा भी वही मौक़िफ़ है, कुरान पाक को सामने रख करके। ठीक है, तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो आप इस पर हुक्म लगा रहे हैं मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह ताला पर, वही हुक्म लगेगा शाह अब्दुल अजीज मोहद्दी देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर, क्योंकि दोनों की इबारतें सेम है। क्या हुक्म लगेगा? दोनों की इबारतें आप सुनाए आप ना, मैं तो कोई एतराज़ी नहीं कर रहा, मैं तो कोई एतराज़ी नहीं कर रहा, मैं कहाँ सुनूंगा? इबारत भेजूं? रुक जाइए, मैं भेजता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं भेज रहा हूँ। एक नहीं 20 किताब से हवाले भेजता हूँ। आप हुक्म सुना दें, यहाँ पर हुक्म सुना दे, एक नहीं 20 किताब से हवाले, आप सिर्फ हुक्म सुना दे जनाब, मैं हवाले भेज रहा हूँ आपको, सिर्फ हुक्म सुनाते हैं आप। अरे भाई भेजो तो हवाला कब? अरे जनाब, मैं तो कह रहा हूँ कि इबारत एक ही है, मैं तो इस पर हलफ भी उठाने को तैयार हूँ। आप सिर्फ इबारत सुना, मैं जनाब मैं खुद कह रहा हूँ आपके घर की किताब में एक नहीं 20 किताब से मैं हवाले भेज रहा हूँ। आप चूंकि बात वही है जो मैं कह